شہرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ خانپور سرکل پولیس نے 4 ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا ہے۔ مزید آپ کو بتائیں کہ ڈی ایس پی سیف اللہ خان کورائی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ملزمان سے 1,85,07,000 روپے کا مال مسروقہ برآمد کیا گیا۔ 32 موٹر سائیکلیں، 10 اسلحہ، 1 ٹریکٹر ٹرالی، 12 سولر پلیٹس اور مال مویشی بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ ڈی ایس پی سیف اللہ کورائی نے تمام مال مسروقہ اصل مالکان کے حوالے کر دیا ہے۔ ایس ایچ او سٹی جام آفتاب صدر شبیر احمد سمیت تمام سرکل ایس ایچ او موجود تھے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خانیوال رانا عمر فاروق کی جانب سے ضلع بھر میں کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں اس حوالے سے وہاں پر موجود ہمارے نمائندے عامر نصیر سے۔ جی عامر نصیر، بتائے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جا رہی ہے ضلع بھر میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے نقد رقم، ٹریکٹر، موٹر سائیکل اور کاریں جو ہے برآمد کیا۔ تو بات کر لیں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عمر فاروق کا ہمارے بات پیش کرتے ہیں کہ رقم لوٹی گئی، پہلی مرتبہ برآمد ہوئی ہے، کاریں موٹر سائیکلیں برآمد ہوئی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 16 عدد گینگ جو ہے وہ ہم نے گرفت میں لی ہے۔ مختلف تھانوں میں واردات کر رہے تھے۔ 39 گینگ ممبران ہیں جن کو گرفت میں لایا گیا ہے، ان کو پابند سلاسل کیا گیا ہے۔ ٹوٹل جو ریکوری کی مالیت ہے وہ 3,62,84,000 کے قریب بنتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضلع خانیوال کی ہسٹری میں اتنی بڑی ریکوری جو ہے وہ کبھی عمل میں نہیں لائے گی۔ اس میں 5 عدد گاڑیاں ہیں، 79 موٹر سائیکلیں، 3 رکشے اور 5 گاڑیاں ہیں۔ تو یہ بہت بڑی کارروائی ہے اور اللہ کا میں بہت مشکور ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خانیوال کی عوام کی خدمت کا موقع دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابھی ہم نے مزید گینگز بھی پکڑ لی ہیں۔ محرم الحرام کی بھی ڈیوٹی چل رہی ہے، لیکن اب اپنی پولیسنگ جو ایفرٹس ہیں اس کو ساتھ ساتھ جاری کیے ہوئے ہیں۔ صحیح طے کہ اچھی کارکردگی دکھا رہے ہیں ایس ایچ او صاحب، تھانہ سٹنگ ہے، صدر ہے، کبیر والا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کو آلریڈی ان تمام کارروائیوں پر آئی جی صاحب سے میں نے CC1 اور ہیوی کیش ریوارڈ، جس میں منیمم کیش ریوارڈ جو ہے وہ 50,000 روپے تھا، ان کو اور ان کی ٹیم کو دلوایا گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی اچھے پرفارمرز ہیں ان کے لیے ہمارے پاس کیش ایوارڈ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ جتنا بہتر پرفارم کریں گے ان کو مزید کیش ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا عمر فاروق کا یہ کہنا تھا کہ خانیوال میں بڑی اور کامیاب کارروائی کا سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا۔ جی اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈی جی فوڈ اتھارٹی راجہ جہانگیر انور کے خصوصی ہدایت پر صوبے بھر میں جعل سازی کرنے والوں کے خلاف بلا تفریق کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گجرانوالہ میں کیمیکلز اور ممنوعہ اجزاء کی ملاوٹ سے جعلی شہد تیار کرنے والے یونٹ کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی حکام نے جنا روڈ کے علاقے میں کارروائی اول میں لاتے ہوئے 34 کلو جعلی شہد ضبط کر کے یونٹ مالک کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا ہے۔ فوڈ اتھارٹی حکام کے مطابق جعلی شہد کو معروف کمپنیوں کی دلکش پیکیجنگ لگا کر مارکیٹ میں سپلائی کیا جانا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹھل میں 8 محرم الحرام کے حوالے سے ماتمی جلوس نکالا گیا، جس میں عزاداران حسین کی کافی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ مزید آپ کو بتائیں کہ تحصیل ٹھل سے 8 محرم الحرام شہدائے کربلا کی یاد میں ماتمی جلوس نکالا گیا، جس میں مرد اور خواتین، بچوں سمیت عزاداروں کی کافی بڑی تعداد شامل ہوئی۔ جلوس مرکزی امام بارگاہ چلانی محلہ سے برآمد ہو کر اپنے مقررہ راستوں پر گامزن ہے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے رینجرز کے جوانوں کے ساتھ پولیس اہلکار اور جعفریہ یوتھ اسکواڈ نے سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیے، جبکہ ماتم کے دوران زخمی ہونے والے مومنین کو طبی امداد فراہم کرنے کے لیے سول اسپتال کے عملے اور دیگر کی جانب سے ڈاکٹرز بھی موجود تھے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے لخت جگر شہزادہ قاسم کی شہادت کے سلسلے میں وزیر آباد میں ماتم جلوس مرکزی امام بارگاہ قصر سکینہ المعروف امام بارگاہ مہاجرین سے برآمد ہو چکا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائندے امانت علی سے۔ جی امانت، بتائیے گا۔ جی بالکل، شہزادہ قاسم علیہ السلام کی شہادت کے سلسلہ میں امام بارگاہ قصر سکینہ المعروف امام بارگاہ مہاجرین سے جو جلوس ہے وہ برآمد ہو چکا ہے۔ جلوس اس وقت اپنے روایتی راستے پر گامزن ہے۔ جلوس کے آنے والے راستوں میں داخلی اور خارجی راستوں کو جو ہے وہ تناطے لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ جلوس کے راستے میں عزاداران امام حسین علیہ السلام کے لیے ٹھنڈے اور میٹھے مشروبات کی شبیل اور لنگر کا وافر انتظام کیا گیا ہے۔ بات کی جائے سیکورٹی کے حوالے سے تو سیکورٹی کے انتہائی فول پروف انتظام کیے گئے ہیں۔ ہر جو شخص ہے جس کو اپنی جلوس میں شرکت کرنی ہے اس کی باقاعدہ طور پہ جامع تلاشی دی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو جلوس میں شرکت کی اجازت دی جاتی ہے۔ جلوس رات گئے واپس اپنی ہی امام بارگاہ قصر سکینہ المعروف امام بارگاہ مہاجرین میں پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ جی
मीरपुर खास में पुलिस ने मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दे दी है। मुहर्रम उल हराम के दौरान ज़िले भर में 495 मजालिस मुनक्किद की जाएंगी, जिसमें 110 मजालिस को हसास करार दिया गया, जबकि ज़िले भर में टोटल 107 अलम-उल-जना के जुलूस निकाले जाएंगे, जिसमें 23 जुलूस को हसास करार दिया गया है, जबकि मजालिस और जुलूस की निगरानी के लिए 1450 पुलिस अफसरान और पुलिस एहलकारों के साथ रेंजर्स जवान तैनात करने का फैसला किया गया है। एसएसपी मीरपुर खास कैप्टन रिटायर्ड असद अली चौधरी ने बताया कि पुलिस की भारी नफरी के साथ रेंजर्स और सादा लिबास एहलकार तैनात किए जाएंगे, जबकि जुलूस की गुजरगाहों और मजालिस की सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी निगरानी की जाएगी। उमरकोट में भी आज मुहर्रम उल हराम शहजादा कासिम के लिए मरकजी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह बीच बीर से बरामद हो चुका है, जो इस वक्त अपनी रवायती रास्तों पर गामजन है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वकास खान यूसुफजई से। जी वकास खान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह उमरकोट में भी 8 मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह पंजपीर से बरामद हो चुका है, जो रिवायती रास्तों से होता हुआ केरी इमाम बारगाह, नबन सरकार इमाम बारगाह, खोसा इमाम बारगाह और फ़कीम इमाम बारगाह से होते हुए नमाज मगरिब में के वक्त मरकजी इमाम बारगाह पंजपीर का इख्तिताम पजीर होगा। यहाँ मैं आपको सिक्योरिटी का हवाला बताना चाहता हूँ। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी इमाम बारगाह और जुलूसों की निगरानी कर रही है, जबकि एसएसपी ऑफिस में कंट्रोल रूम काम किया गया है, जिसकी निगरानी एसएसपी एजाज में शेख खुद कर रहे हैं। जी और अब आपको बताते हैं कि शकरगढ़ दरिया रावी की तुग़यानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। इंतज़ामिया कहाँ है, नशेबी इलाके को किन मुश्किलात का सामना है, मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे राना इश्तियाक, जो इस वक्त नाला बतई के किनारे मौजूद हैं। जी राना इश्तियाक, बताइएगा मज़ीद क्या अहवाल हैं वहाँ के। जी बिल्कुल, मकबूजा कश्मीर और शकरगढ़ के सरहदी इलाकों में बारिशों की वजह से दरियाए रावी की तुग़यानी में मसलसल इजाफा हो रहा है। सैलाबी सूरत हाल का खदशा इस वक्त जलाला दरियाए ओज में बहाव 25,000 क्यूसेक, कोटनाना दरियाए रावी का बहाव 25,000 क्यूसेक बढ़कर 39,000 हो गया है। अगर बात की जाए नाला बही में, इस वक्त मैं नाला बही के किनारे पर मौजूद हूँ, जहाँ पर नाला बही की सूरत हाल सैलाबी सूरत हाल है। बहाव तकरीबन 1,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। जस्सर दरियाए रावी का बहाव 40,000 क्यूसेक है। हंगामी सूरत हाल से ज़िला बार में अभी अभी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरिया और नदी नालों के करीब जाने और खेती बाड़ी करने पर सख्त पाबंदी कर दी गई है। किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए रेस्क्यू और रेंजर्स की टीमें हमें वक्त तैयार हैं। जी शेरगढ़ और गिरदोनवाह में भी मानसून की बारिशें जारी हैं। शेरगढ़ के नवाही गांव 20-1L में गुज़िश्ता दिनों से जारी मानसून के ताकतवर स्पेल ने जल्द थल एक कर दी है। निकासियाब के बेहतरीन इंतजामात होने के बाद बाज़ारों और गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। बुजुर्ग नमाजियों को मस्जिद जाने के लिए दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। खड़े बदबूदार पानी से मौलिक बीमारियां जरासीम जन्म लेने लगे हैं। बारिश और सीवरेज का मिला हुआ पानी लोगों के घरों में भी दाखिल हो गया है, जिससे लाखों रुपए की लागत से बनाए गए मकानों को दरारें पड़ गई हैं और बुनियादें बैठ जाने से बच्चों बुजुर्गों के सरों पर मौत के बादल मंडाने लगे हैं। अहले गांव ने मुकामी इंतजामिया से नोटिस लेकर गांव में आब नकासी, कच्चे बाजारों में सोलिंग लगवाने का भी मुतालबा कर दिया है। और अब आपको बताते हैं कि दरिया सतलुज में हेड गंडा सिंह और हेड सलबानगी के मकाम पर पानी की सतह में एक दफ़ा फिर इजाफा हो गया है। खड़ी फसलें तबाह हो गईं, बस्तियां ज़ेर आब आ गईं। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद विर्क। जी हाँ, बिल्कुल, भारत की जानब से अब भी जारियत का सिलसिला जो है वो जारी है। मजीद उन्होंने 84,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया है, जो बहुत ज़्यादा है। पानी के बहाव में इस वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है। मैं मौजूद हूँ बहावल नगर के बुक्का पत्तन पर, जहाँ पर जो इलाका मकीन है उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। वो अपनी मदद आपके तहत बंद भी डाल रहे हैं। मेरे साथ एक इलाका मकीन मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि इस बारे में उनके क्या ख्याल आते हैं। जी सर, बताइएगा आपको। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने पहले भी कॉल की है, एसी साहब को हमने कॉल की है, डीसी साहब को हमने कॉल की है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही। फिर उसके बाद अवाम ने खुद ही अपना रिलीफ जो है खुद बनाया, खुद ही पैसे डाले हैं, पैसे डाल के खुद ही यानी कि तेल का जो खर्चा उठा रही है। और बार बार हम कॉल करने के बावजूद फिर भी हमारी जो है ना सुनवाई नहीं हो रही। फिर उसके बाद जो एसी साहब आए हैं, डीसी साहब आए हैं, या फिर उनकी जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं वो आए हैं, तो ऊपर बांध के ऊपर खड़े होकर बस वही मुआयना करके वापस चले गए। हमारी जो है ना सुनवाई नहीं हो रही। फिर उसके बाद ये इलाका मकीन जो इधर रहायश पजीर हैं, ये भी बहुत परेशानी है।
और परेशानी है, इस वजह से ये लोग खुद ही अपने जो है ना मदद खुद ही कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट आता है तो वहीं से वो वापस चला जाता है। जी, जैसा कि आपने इलाका मकीन की बात सुनी, वो बहुत ज्यादा हुकूमत से नालार नजर आ रहे थे और हुकूमत से अपील कर रहे थे खुदारा हमारी मदद की जाए। जी, हालिया बारिशों के बाद दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब है। ताहम किसी भी नागानी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मज़ीद जानते हैं जतोई से अपने नुमाइंदे हुज़ैफा आरवी की इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई जो कि दो दरियाओं के संगम में मौजूद है। तहसील जतोई के मशरक में दरिया चनाब और मगरब में दरिया सिंध बहता है। हालिया बारिशों के बायस दरिया सिंध में इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब चल रहा है, जबकि दरिया चनाब में पानी मामूल के मुताबिक है। ताहम जिला भर में दरिया सिंध के बेट के इलाकों में 21 और चनाब के बेट के इलाकों में 15 कैंप्स लगाए गए हैं। इस वक्त चनाब में 1,10,000 क्यूसेक पानी है, जबकि चनाब में लो फ्लड जो है वो 1,50,000 से स्टार्ट होता है। तो अभी तक उस से फ्लड नहीं आया। बेट के दरिया के जो बेट है उसके अंदर जो घर हैं वो उनको अर्ली वार्निंग दे दी गई है। वो पहले भी हमने आज से 15-20 दिन पहले जो सैलाबी रेल आया था वो भी इंतज़ामिया ने एफर्ट करके बखैर आफियत उसको गुजार दिया था। तो चनाब में ऐसे कोई फ्लड के हालात नहीं, लेकिन हमारे ऑलरेडी इस पे तकरीबन 15 कैंप्स अवेलेबल हैं। इस वक्त 3,70,000 पानी चल रहा है और लो लिमिट जो है वो 3,50,000 से स्टार्ट होती है। उसमें भी इवैक्यूएशन के लिए रिलीफ की तमाम एक्टिविटीज़ मुकम्मल की जा चुकी हैं। कैंप एस्टैब्लिश्ड है, रेस्क्यू का अमला वहाँ पे मुतय्यन है, पुलिस मौजूद है, लाइफ स्टॉक मौजूद है, डॉक्टर्स और मेडिकल की टीम्स मौजूद हैं। दरिया सिंध में इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब चल रहा है। ताहम दरिया के बेट के इलाकों से लोगों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल करने के साथ साथ तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मोहम्मद हुज़ैफा आरवी, मेट्रो 1 न्यूज़, जतोई। शहरनामे का सिलसिला जारी है। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताते हैं कि अगोगी और गिरदनवा में शदीद बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है और शहरियों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई है। मज़ीद जानते हैं अली इमरान से। से जो बारिश का सिलसिला है वो जारी है। गर्मी से निडाल लोगों के जो चेहरे थे वो और अब्रे रहमत बरसने से लोगों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ चुकी है। इंसान नहीं बल्कि चरिंद परिंद ने भी सुख का सांस लिया है। निशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं और महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटे में वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है जारी और सारी रहेगा। जी, ओकाड़ा में हालिया बारिशों के बाद निकासी आब के नाक़िस इंतजामात के खिलाफ जमात इस्लामी ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया है। एहतजाजी मुजाहरे में कारकुनों, ताजिर और सिविल सोसाइटी के लोगों ने शिरकत की, जबकि शुरका का कहना था कि तूफ़ानी बारिश के बायस सड़कों पर 3 से 4 फुट तक पानी जमा रहा, लेकिन इंतज़ामिया नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आई। ताजिरों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? मुंतखब नुमाइंदे भी सिर्फ फ़ोटो सेशन करते रहे। 15 साल से नून लीग की हुकूमत होने के बावजूद भी सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि बारिश के पानी ने लोगों के घरों का काफ़ी नुकसान किया है, लेकिन इंतज़ामिया मंजर आम से गायब रही। दूर दराज के इलाकों को भी मुश्किलात का सामना रहा, जबकि 2 रोज़ गुजरने के बावजूद भी बारिशों का पानी सड़कों पर मौजूद है। और अब आपको बताते हैं कि कसूर लाहौर रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। रोड बर वक्त तामीर न होने से ट्रैफिक हादसात का सबब बनने लगा है। वन वे के खिलाफ वर्जी मामूल बन गई है। मज़ीद जानते हैं गुलाम दस्तगीर कसूरी से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कसूर लाहौर फिरोजपुर रोड पर और इस रोड को जो है नामुकम्मल और अधूरा छोड़ दिया गया है। ठेकेदारान इसको नामुकम्मल छोड़कर रफू चक्कर हो चुके हैं, जिसकी वजह से इस रोड पर आए रोज़ हादसा हो रहे हैं और लोगों की कीमती जानें और लोगों की जो है कीमती गाड़ियाँ जो हैं लाखों करोड़ों मालियत की इसमें जो है वो तबाह बर्बाद हो रही हैं। और यहाँ पर अगर बात करते चलें इस रोड को बनाने के हवाले से, तो कसूर से ललियानी तक इस रोड को मुकम्मल किया गया है एक साइड को, और दूसरी साइड को जो है नामुकम्मल अधूरा छोड़ा गया है। तो जिसकी वजह से आए रोज़ हादसा हो रहे हैं। ट्रैफिक हादसा में काफ़ी लोगों के नुकसान हो रहे हैं। और यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि कसूर से लेकर काना तक रोड इस कदर ख़राब है, जगह जगह पर खड्डे पड़े हुए हैं और बारिशों की वजह से वहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है और घंटों जो है वो ट्रैफिक जाम रहती है, जिससे लोगों को काफ़ी दुश्वारी और अज़ियत का सामना रहता है। तो अगर बात की जाए ट्रैफिक के हवाले से, तो इस रोड के ऊपर जो नामुकम्मल अधूरा रोड छोड़ा गया है, तो जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है
वो लोग दूसरी साइड पे जो रोड ललियानी तक बना है कसूर से, उसके ऊपर ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा जोर है। लोग वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक हादसात में इजाफा हो रहा है। तो शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म से ये इल्तमास की है और ज़िली इंतज़ामिया से भी कि इस रोड को हंगामी बुनियादों पर बनाया जाए, तामीर किया जाए, ताकि लोगों की कीमती जानें और माल महफूज हो सके। अगर शहरियों ने यह भी कहा है कि अगर फंड की कमी और दीगर वजूहात की बिना पर अगर इस रोड को बरवक्त नहीं तामीर किया जाता तो इस रोड के ऊपर जो चलने वाली ट्रैफिक है उसको वन वे की जो खिलाफ वर्जी हो रही है उसको रोका जाए, ताकि ट्रैफिक हादसा में जो है वो उसमें कमी आ सके। जी। जहलम में शहीद कांस्टेबल ज़ीशान अली की पहली बरसी के मौके पर शहीद की लहद पर पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की है। DPO जहलम नासिर महमूद बाजवा ने शहीद की लहद पर फूल चढ़ाए और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। DSP सदर मियां अब्दुल जब्बार, DSP हेडक्वार्टर्स मलिक अकील अब्बास, SHO मंगला कैंट एहसन शहजाद भट्ट और दीगर पुलिस अफसरान ने तकरीब में शिरकत की। शहीद कांस्टेबल ज़ीशान अली 1 साल कबल मुलजिमान की फायरिंग से शहीद हो गए थे। DPO जहलम ने शहीद के अहल खाना से मुलाकात भी की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जहलम ने कहा कि हमने कहा है कि हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं, आपके दुख सुख के हर घड़ी में हमें अपने साथ पाएंगे। शुहदा पुलिस हमारे माथे का झूमर है, जिनकी अजीम कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। DPO जहलम नासिर महमूद बाजवा, शुहदा पुलिस हमारे मोहसिन हैं जो बहादुरी और शुजात की दास्तानें रकम करते हुए हमेशा के लिए अमर हो गए। DPO जहलम नासिर महमूद बाजवा, शुहदा पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों का कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते। शुहदा की फैमिलीज और बच्चे मुझे अपनी फैमिली और बच्चों की तरह अजीज हैं। और अब आपको बताते हैं कि कश्मीर में 45 रोज़ कबल अगवा होने वाले FC एहलकार खालिद पठान की डाकुओं ने एक और वीडियो वायरल कर दी है। वीडियो में मुख्बी खालिद पठान को सैलाबी पानी में जंजीरों से बंधा देखा जा सकता है। डाकुओं की जानिब से मुख्बी की बाजियाबी के लिए 1 करोड़ रुपए तावान तलब कर लिया गया। मुख्बी खालिद पठान का कहना था कि मुझे बुखार है, मेरी तबीयत इंतहाई नासाज है। मुख्बी ने SSP कश्मीर अमजद अहमद शेख से बाजियाबी का मुतालबा भी किया है। डेरा गाजी खान जहाज चौक पर दिन दिहाड़े डकैती के दौरान नौजवान ने डकैतों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हाजी सईद खान। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान मुल्तान रोड जहाज चौक पर 2 डकैतों ने एक फ्रूट बेचने वाले बच्चे को लूट लिया। जबरदस्ती नकदी, चीनी, बैटरी मोटरसाइकिल पर वो रख कर डेरा गाजी खान का रुख किया। नौमा लड़के ने शोर मचाया, पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने नौमा लड़के को साथ रोड पर घसीटते हुए काफी दूर ले गए, जिससे वो जख्मी हो गया। वहां पर मौजूद शानी बिरादरी और जरवरा बिरादरी के नौजवान ने डकैतों को ललकारा और पीछा किया। 1 किलोमीटर दूर दोनों डकैतों को दबोच लिया। दोनों बिरादरों के दर्जनों अफराद मौका पर पहुंच गए, मगर उन्होंने मुहर्रम अल हराम को मद्देनजर रखते हुए डकैतों की इलतरेशन नहीं की कि हमें इस्लाम मुहर्रम अल हराम में अमन का दर्ज देता है। मकामी पुलिस मौका पर पहुंच गई, दोनों डकैतों को लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। नौजवानों का कहना था कि पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करे, ये ना हो कि इन्हें मुका करके छोड़ दें। डकैतों के कब्जे से मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, शनाख्ती कार्ड और चीनी की बैटरी भी हवाला पुलिस। हाजी मोहम्मद सईद गिंदी, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, मेट्रोमैन न्यूज़, डेरा गाजी खान। गोजरा थाना सदर की हदूद नवाही चक में फायरिंग के नतीजे में शाहिद बशीर नामी नौजवान शदीद जख्मी हो गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा मेट्रोमैन न्यूज़ डॉक्टर अब्दुल शकूर गुज्जर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, थाना सदर की हदूद नवाही चक 161 गाफे में मामूली तलह कलामी पर नुमान वगैरह ने 3 अफराद ने घर में घुसकर नहत्ते नौजवान शाहिद बशीर पर फायरिंग कर दी, जिससे शाहिद बशीर नामी नौजवान शदीद जख्मी हो गया। जब शाहिद बशीर को रूरल हेल्थ सेंटर मुंगी बंगला पहुंचाया गया तो फायरिंग करने वाले नुमान वगैरह ने उसके घर वापस आकर शवाहिदात मिटा दिए। जो खून ज़मीन पर गिरा था उसको साफ करने की कोशिश की, मगर ना तो शाहिद का मेडिकल किया गया। रूरल हेल्थ सेंटर मुंगी बंगला ने एक्सरे मशीन ख़राब है कहकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल टोबा टेक्सिंग मुंतकिल कर दिया। जबकि 12 घंटे गुजरने के बावजूद भी डॉक्टरों ने शाहिद बशीर का न तो मेडिकल किया है और ना ही मुतलका पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार किया है।
मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद बशीर ने RPO फैसलाबाद DPO टोबा टेक सिंह सैयद करार हुसैन से मदद की अपील कर दी कि फायरिंग करने वाले अफराद को गिरफ्तार किया जाए और मेरी दाद रसी की जाए। डॉक्टर अब्दुल शकूर गुजर, मेट्रो 1 न्यूज़, गोजरा। जिन्हां दा नाम एक नवीर सी, एक बिलाल सी, नुमान सीगा। शहनामे से फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।